So, nature of the economic problem is the first chapter which we are going to quickly go through. First of all, let's look at um, the learning objectives. We have to understand what economic problem is. Why will the economic problem persist? This is a question which appears in the exam very frequently, especially in a 4-mark question. Uske baad jo hai, we will try to explain the difference between economic and free goods. What if I want to look at the economic concepts? पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक तरीका है जिसके अंदर आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं ताकि नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। राइट, व्हाट इज अ नीड? नीड इज अ गुड एंड सर्विस which is required for living. Wants are good and services which satisfy some higher desires, right? Since the resources which are required to satisfy needs and wants are limited, therefore we cannot have everything and therefore we will have to choose, राइट। आप में से जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जब हम मैस्लोस हायरार्की पढ़ते हैं तो देयर आर सर्टेन हायर ऑर्डर नीड्स। फॉर एग्जांपल, द नीड टू बी अप्रिशिएटेड, द नीड टू बी लव्ड, लव एंड बिलोंगिंग, टू मेक सोशल रिलेशनशिप्स। जो चीजें हमें ये अचीव करने में मदद देती हैं इनको हम वांट्स कहते हैं, राइट। ये हमारी वांट्स हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट finite resources. The economic problem states that the resources which are required to satisfy goods and services, they are scarce, which means they are limited. So there are lack of resources. And economic problem arises from scarcity. Scarcity का मतलब होता है lack of resources. There are unlimited wants and needs versus finite resources. So economic problem is that we have limited resources to satisfy unlimited needs and wants. और इस मिसमैच की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। आपको अंदाजा करना पड़ता है या सोचना पड़ता है कि कौन सी नीड्स या वांट्स हैं जिनको सेटिस्फाई किया जाए और कौन सी नीड्स एंड वांट्स हैं जिनको छोड़ दिया जाए, राइट। What are the needs and wants which should be satisfied and what are needs and wants which cannot be satisfied? And therefore you have to make a choice. You would have to make a trade-off. And whenever you have to make a trade-off, when you choose something, you will give up something. The thing which you give up, उससे जो benefit आपको मिल सकता था वो आपकी opportunity cost है। I really cringe at the fact when people say that opportunity cost is the next best alternative foregone. No, it is the benefit from the next best alternative foregone. That is the true essence. कि उससे जो फायदा मिल सकता था वो जो अब आपके हाथ से चला गया, that is your opportunity cost. If you look at the key terms, resources are the factors of production. The 4 factors of production: land, labor, capital, and enterprise, which is required to produce goods and services. The economic problem I have explained, and so have I explained scarcity. When I continuing nature of the economic problem, which means that the economic problem will persist. हर साल ये दुनिया तरक्की कर रही है। We are हम, if I'm not mistaken, we are $100 trillion economy, global economy. The entire GDP of the world is around $100 trillion. Just to put this in perspective, ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं। इतनी बड़ी आपकी इकोनॉमी है, राइट। और वो हर साल तकरीबन ग्रो कर रही है। उसके बावजूद लोगों की नीड्स एंड वांट्स पूरी नहीं होती। तो इतना ज्यादा तरक्की करने के बाद why is economic problem continuing? It is because scarcity exists and will continue to exist because of 2 factors. Why? Needs and wants evolve. That's the beautiful word I'm looking for. Evolve. What do you mean by continuously changing? एक पूरी होती है तो it is replaced by a bigger, higher need. बाइसिकल पे आप बैठे हुए हैं, बाइसिकल की नीड पूरी हो गई तो आप मोटर बाइक से स्मॉल कार से बड़ी कार। यू वुड नॉट वांट टू हैव 2 ऑल्टोस, यू वुड नॉट वांट टू हैव 2 bikes. You would want to combine those resources and buy a bigger car. So it is continuously evolving. Evolving का मतलब होता है grow in scale, scope and value. ठीक है, it is continuously evolving. तो एक रीजन ये है कि why does economic problem continue? It is continuing because needs and wants continuously evolve, right? That is the first. Second is that the resources are growing at a slower speed than your needs and wants. Resources are growing. There is no doubt about that. But the rate at which they are growing is lesser as compared to a growth in needs and wants. जितनी तेजी से आपके resources grow हो रहे हैं उससे कहीं तेजी से आपकी needs और wants grow हो रही हैं। आपके अतराफ है ना, आपके घर एक्सपैंड ज्यादा जल्दी से कर जाता है और सैलरीज उतनी जल्दी से एक्सपैंड नहीं करती, राइट। सो दैट इज व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। Economic problem in different context. What do you mean by economic problem in different context? There are insufficient resources. For example, for consumers, how will the economic problem continue? Because consumers will have limited incomes and their needs and wants will grow at a faster pace. When you come to students का जो time होता है वो limited होता है. They cannot study economy and chemistry at the same time because they can either give time or resources to one thing. दोनों को simultaneously लेके चलना इतना आसान नहीं है. Workers, choices about jobs. If I am a teacher, ठीक है,
So I may not be able to work as a neurosurgeon. And time is a limited supply. So time is a resource जो आपके हाथ में है ही नहीं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा एग्जिस्ट करेगा. For producers, what to make? If you start making rice, you will not be able to make wheat. If you start making clothes, you will not be able to make toys in the same factory using the same capital goods. Land is scarce. What does it mean by that? It means government. अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो डिसाइड हाउ टू स्पेंड टैक्स रेवेन्यू. व्हाई? बिकॉज द टैक्स रेवेन्यू विल बी लिमिटेड. अब अगर आपने फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर टैक्स रेवेन्यू यूज करके हॉस्पिटल बना लिया, तो अब आपके लिए रेवेन्यू इतना नहीं है कि आप एक नए स्कूल के ऊपर पैसा खर्चे. बात समझ में आ रही है? सो दैट इज व्हाई योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम विल कंटिन्यू फॉर कंज्यूमर्स, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर वर्कर्स, फॉर प्रोड्यूसर्स, फॉर गवर्नमेंट. अब अगर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेट टू स्टूडेंट्स, या यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ अ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए क्या चीज स्कार्स है. इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले उस रिसोर्स का नाम दें जो स्कार्स है, जो लिमिटेड है. कंज्यूमर के लिए इनकम लिमिटेड है, स्टूडेंट के लिए टाइम लिमिटेड हो सकता है, वर्कर्स के लिए एज, उनका एज की वजह से टाइम उनका लिमिटेड हो जाता है, प्रोड्यूसर्स के लिए लैंड लिमिटेड है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू लिमिटेड है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड फ्री गुड्स? एग्जाम के अंदर फ्री गुड्स टेस्ट हो चुका है, अभी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन हमको नजर आएगा. इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच रिक्वायर रिसोर्सेज टू बी प्रोड्यूस्ड. फॉर एग्जांपल, and since resources are limited in supply, every time you make an economic good, you will incur opportunity cost. आप अगर कारपेट बनाएंगे तो उसके लिए रिसोर्स क्या लग रहा है? मटेरियल लग रहा है, यानी कि वुल है, तो शीप वुल आएगा. लेबर कोई बना रहा होगा बैठ के. एजुकेशन अगर कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि मैं इस वक्त आपको कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम जा रहा है. आई एम लेबर क्या लग रहा है? टीचर. रिसोर्स क्या लग रहा है? द लैपटॉप और द इंटरनेट कनेक्शन आई एम यूजिंग. सो आई एम यूजिंग रिसोर्सेज, आई एम यूजिंग माई माइक, आई एम यूजिंग अ राइटिंग बोर्ड टू मेक श्योर दैट यू गेट व्हाट यू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है. सो इसमें जो की टर्म्स हैं वो ये कि इट्स अ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग रिसोर्सेज एंड हैज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दो चीजें आपको याद रखनी है जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो याद रखें, डेफिनेशन फॉर 2 marks will have two knowledge points. The first knowledge point would be that what is excuse me, what is an economic good? Economic good is a resource. The economic good is a good, tangible or intangible, which requires resources to be produced, comma, and it will generate opportunity cost. 2 नंबर मिल गए आपको. इस एग्जाम्पल लिखना चाहते तो लिख दें, लेकिन आपको ये दोनों चीजें लिखनी है, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे दो. When you talk about free goods, what are free goods? Free goods are those goods which do not require any resource to be produced. हवा जो नेचुरली आपको मिल रही है, सनलाइट. सनलाइट कोई लेबर थोड़ी बैठ के बना रहा, वो तो आपके रिसोर्सेज खुद नेचुरल तौर के ऊपर आप तक पहुंच रहे हैं. सनशाइन, राइट. वाटर बिकम, अच्छा वाटर को आप वाटर इन ए रिवर लिखिएगा, वाटर मत लिखिएगा, वाटर इन अ रिवर लिखिएगा. वाटर बिकम्स इकोनॉमिक गुड व्हेन प्रोसेस्ड, यूज्ड फॉर इरिगेशन एक्सेट्रा. अगर वाटर को बॉटल करके, यानी कि मिनरल वाटर इज नॉट फ्री गुड, क्योंकि उसको बनाने में रिसोर्स लगे हैं, बॉटल करने में लेबर लगी है. लेकिन दरिया का पानी जो कि पोलर आइस कैप से या आइस कैप से मेल्ट होता हुआ आपकी लेक के अंदर आके जमा हो गया, या कैनाल से, या ऐसे ही बहता हुआ आपके पास आ गया विदाउट, मतलब एक जगह पे खड़ा हो गया, रिवर में है, और वो नेचुरल रिवर है, वो मैन मेड नहीं है. यानी कैनाल तो मैन मेड है, वो एग्जाम्पल गलत हो जाती. वो रिवर के अंदर एक लेक में, पॉन्ड में जमा हो गया है, जिसको नेचर ने बनाया, तो दैट इज अ फ्री गुड. ठीक है. और फ्री गुड इज नॉट डिटरमिन्ड बाय वेदर पीपल पे, वो आपको मिल रहा होता है. इसमें जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है. इट्स अ प्रोडक्ट रिक्वायरिंग नो रिसोर्सेज एंड देयरफॉर जनरेट नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो चीज जिसको बनाने में किसी किस्म का रिसोर्स नहीं लगता, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जनरेट नहीं करेगा. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर.